Hello everyone. So let us now look at the next concept of number system, which is the very important, and that is base system. ठीक है, अब base system में basically what we have to deal is there are several number of number system that depends on the number of digits we use. For example, there is decimal number system in which we use 10 digits from 0 to 9. There is other number system which is binary number system in which we use only two digits, that is 0 and 1, which is used by the computers. ठीक है, और एक और सिस्टम जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम दैट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम. सो ऑक्टल नंबर सिस्टम इन विच बेस इज 8. बेस इज 8 means how many digits that number system is using, that is their base. So in octal number system base is 8, that means they are using the digits from 0 to 7. So basically we need to understand all the different types of number system and their conversions from one system to other system. Okay, so let us start with the decimal number system. So we are discussing today base system. So in this we start with decimal number system. In decimal number system, digits used are 0 to 9. Okay, digits are used 0 to 9. So 0 to 9 is 1 to 9 and 0. That means there are total 10 digits. Okay, so we use 10 digits in decimal number system, which we already use conventionally. जो अपन रेगुलर यूज करते हैं नंबर सिस्टम, दैट इज द डेसिमल नंबर सिस्टम, जहां अपन 0 से 9 तक की डिजिट्स को यूज करते हैं. ठीक है, तो दैट इज द डेसिमल नंबर सिस्टम. Since we are using 0 to 9 10 digits, so that is the base of that number system. तो जितने digits अपन use करेंगे that will be the base of that system. Second is binary number system. In this we use only two digits, that is 0 and 1. So that is the only two digits. That is only two digits. That means its base is basically 2. So base is nothing but the number of digits used in that particular number system. So there are several types of number system, that is decimal, binary, octal, hexadecimal. Octal means when their base is 8, when the base is 2 is binary, when the base is 10 the number system is decimal, when the base is 16 then the number system is hexadecimal number system. So base is what? Base is nothing but the number of digits used in that system. So if this is having the base of 8, that means the number of digits used are 0 to 7. ठीक है, here the digits will be 0 and 1 only, here 0 to 9. But in hexadecimal number system there will be 0 to 9 and then 10 to 15. So 10 will be A and 10, 11, 12, 13, 14 and 15. So 10 would be A, 11 would be counted as B, C, D, E and F would be counted at 15. So 15 will be represented by F. So in hexadecimal number system there are 0 to 15 numbers, so that means total 16 digits. From 0 to 9 conventionally we follow 0 to 9, but after that 10 to 15 we use the alphabet, that is from A to F. So A represent 10 and F represent 15. So that is the number system on different bases. Okay, if we use the base, for example if we use the base system of 3, that means then we will use only digits 0, 1 and 2. So any number in base 3 system will be of only 0, 1 or 2 digits combination. तो जो नंबर होगा वो 0, 1 या 2 के कॉम्बिनेशन से बना होगा अगर बेस 3 का नंबर है. सिमिलरली अगर बेस यूज करते हैं अपन 7, तो जो नंबर है वो कहां से कहां तक होंगे, 0, 1 से लेके 6 तक उनमें डिजिट्स होंगे. ठीक है, 0, 1 से 0 to 6 तक कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है उन नंबर सिस्टम, उस सब नंबर सिस्टम का जिसका बेस क्या है 7. तो उसमें जो भी नंबर्स बनेंगे दैट विल बी फ्रॉम 0 to 6 कॉम्बिनेशन. ठीक है, 0 to 6 कॉम्बिनेशन का बना होगा. ओके,
So let us now look at the conversions between the number system, that is from decimal to others. Others means binary, octal, hexadecimal and base 7, base 3 एक्सेट्रा. ठीक है, तो डेसिमल से अदर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करते हैं नंबर्स को, एंड अदर्स टू डेसिमल्स में कन्वर्जन कैसे किया जाता है. ठीक है, सो विल बेसिकली लुक 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ कन्वर्जन्स. And that is decimal to others. Others means apart from decimals, okay, and others to decimal. So we'll look for the conversions from decimal to others and others to decimal, okay. And one more conversion is, that is others system, that means apart from decimal to others. That means, for example, binary to octal conversion, okay. So we will look at these 3 conversions: one decimal to others, second others to decimal, and third will be others to others. That means in both these there should not be decimal, not decimal involved, okay, not decimal. So any number system others to other, that means from binary to octal and etc. So we'll basically see these 3 types of conversion, which is very important with respect to base system, okay. So let us begin with those conversion. We'll start with from decimal to others. So let us now look at the conversion for the number system. That is, first we will discuss the conversion from decimal to others, okay. So first we will be discussing the numbers from decimal to others. So let us start with the conversion from decimal to other system. So first we will look into the conversion, that is decimal number system to others, okay. So in decimal, let us look at the example first to understand it clearly. For example, suppose that number is 435 in decimal number system, that means base 10. We need to convert this number to, let us assume that in the base 6, we need to convert this number to base 6. That means base 6 में डिजिट्स कौन कौन सी होंगी परमिट, 0 से लेके 5 तक. तो मुझे अगर बेस 10 से बेस 6 जाना है तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा नंबर है 435, जो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो मेरा नंबर है 435, इसको मैं सक्सेसिवली डिवाइड करता जाऊंगा जिस बेस में कन्वर्ट करना है, दैट इज 6. तो मैं इसको 6 से सक्सेसिवली डिवाइड करूंगा. दैट विल बी 6 7 42, 6 2 12, so remainder would be 3. We write down the remainders separately and these are the question. Then 6 12, 12 6 72, remainder would be 0. Again 6 2 12, remainder is 0. Now since we cannot further divide 2 from 6, so we'll stop here and we'll see the reverse, that is from bottom to top the digits involved. So the numbers would be 2003. So that is the conversion of decimal number to the base 6 number. So our answer would be, we'll start from 2003 from bottom to top. So that would be 2003 in base 6. Okay, so that will be our answer. So how to convert? We'll first divide the decimal number system by the 6. So we'll divide successively by 6 and notice the remainders. Once we get 2, that means number less than the divisor, we'll stop there and then we will write from this number itself from bottom to top. We'll write these numbers from bottom to top as the conversion of base 6. So that would be the 2003 and that is the final conversion from decimal to base 6 system. Okay. So let us look at the one more question. For example, if we need to convert 35, in decimal 10 to binary number system. So binary base is 2, we have to convert this number to binary. So we will divide 35 successively by 2. So number is 2, 2, 17, 34, remainder will be 1. So 2, 8, 16, remainder will be 1. 2, 4, 8, remainder will be 0. 2 2s are 4, remainder will be
0, and next 2 ones are 2, so remainder would be 0. So since we got the one which is less than 2, we'll stop here and then we will go from bottom to top to see the conversion of binary. तो ये नंबर क्या बन जाएगा, बॉटम से टॉप पे 1, 3 टाइम्स 0 डबल 1, सो अपना फाइनल आंसर होगा 1, 3 टाइम्स 0 बॉटम टू टॉप 1, 3 टाइम्स 0 डबल 1, that is the binary conversion. So that is the conversion from decimal to binary. This is our required answer of decimal to binary conversion. Okay, so let us look at the next example. If we want to convert the decimal number to others but the number is in decimal form, that means for example let us suppose that the number is 24.375 in base 10. We need to convert this number to let's say binary number system. ठीक है, अब जो नंबर इन्वॉल्व है उसमें क्या है, डेसिमल नंबर है और ये डेसिमल नंबर सिस्टम में. ठीक है, अब मेरे को ये नंबर कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में. तो इसमें क्या करेंगे, इसमें अपन सबसे पहले सेपरेटली कन्वर्जन करेंगे. ठीक है, डेसिमल से पहले मतलब ये इंटीजर पार्ट को सेपरेट करेंगे और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका कन्वर्जन सेपरेट देखेंगे. ठीक है, सो दैट विल बी डिफरेंट, दैट इज द इंटीजर पार्ट बिफोर द डेसिमल एंड दैट इज द फ्रैक्शन पार्ट आफ्टर द डेसिमल. दोनों का जो कन्वर्जन है वो अपन सेपरेटली करेंगे. ठीक है, तो सेपरेटली कन्वर्ट करने के लिए जो इंटीजर पार्ट है वो 24, उसको तो अपन ऐसे ही करेंगे जो अपन ने अभी तक सीखा था. 2 into 12 24 रिमाइंडर 0, 2 6 12 रिमाइंडर 0, 2 3 6 रिमाइंडर 0, 2 1 2 रिमाइंडर 1. ठीक है, तो इसका तो कन्वर्जन क्लियर है. ठीक है, 24 इन बाइनरी विल बी 1 1 0 0, दैट मीन्स 1 1 0 0 इन बाइनरी. तो मैंने 24 जो पार्ट है जो बिफोर द डेसिमल पार्ट है उसको तो अपन ने जो मेथड सीखा डेसिमल टू बाइनरी वैसे ही करना है, लेकिन जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको कैसे करना है वो देख लेते हैं. तो इसमें क्या करेंगे, जो अपना फ्रैक्शन पार्ट है 0.375 विल मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन पार्ट बाय द बेस नंबर दैट इज 2, जिस बेस में अपन को कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो अपन इस नंबर को इस बेस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट 0.75. ठीक है, तो जो अपन को रिजल्ट मिलेगा उससे डेसिमल से पहले जो भी डिजिट होगी वो अपन उसको लिख लेंगे. दैट विल बी आवर फाइनल कन्वर्जन इन बाइनरी नंबर सिस्टम. ठीक है, तो जो डेसिमल से पहले जो डिजिट है वो अपनी क्या है 0. ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, इसी 0.75 को यूज करेंगे. वी विल मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय अगेन 2 एंड वी विल लुक फॉर द रिजल्ट. 0.7 into 2 विल बी 1.5. तो अपन क्या करेंगे, डेसिमल से पहले वाला जो नंबर है उसको लिख लेंगे 1 को. ठीक है, सो नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, सिर्फ फ्रैक्शन वाला पार्ट लेंगे. अब ये 1 को अवॉइड करेंगे, विल लुक ओनली फॉर फ्रैक्शन. सो 0.5 into 2 विल गिव यू 1.0. ठीक है, अगेन फिर मैं यहाँ 1 लिख लूंगा. ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जो डेसिमल से पहला वाला पार्ट है जो डिजिट है वो सिर्फ अपन को लिखनी है. उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे सिर्फ फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल के बाद वाला पार्ट बेस नंबर से मल्टीप्लाई करना है. एंड वंस we get 0 after the decimal, we'll stop there. ठीक है, then in this we'll look from top to bottom for the conversion. we'll look from top to bottom. तो अपन का डेसिमल पार्ट जो है 0.375, इसका जो कन्वर्जन होगा बाइनरी में वो होगा 011. ठीक है, सो आवर फाइनल आंसर फॉर दिस 24.375, इसका फाइनल कन्वर्जन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 11,000 11,000 11,000 and that is 0.11. okay, so that is our final binary conversion from decimal to binary. okay, so let us look at the one more question of this, and that is, if the question is 37.3125 in base 10 and we need to convert this number to binary. okay, now we need to convert this number to binary. तो सबसे पहले अपन का जो इंटीजर पार्ट है वो सेपरेटली करेंगे अपन 37. सो दैट वुड बी 2 into 18 36, 2 9s are 18, 2 4s are 8, so that is the remainder 0, 2 18 36, sorry, remainder 1, 2 9s are 18, remainder 0, 2 4s are 8, remainder 1, 2 2s are 4, remainder 0, and that is 2 1s are 2, so remainder is 0. So our final conversion for this would be 1
000101। ठीक है, तो ये तो हो गया कन्वर्जन किसका, 37 का। नाउ फॉर डेसिमल पार्ट विल 0.312 आई विल मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय बेस 2। ठीक है, तो इसको बेस 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो दैट विल गिव यू 0.625। 0.625 मिलेगा। अब डेसिमल से पहले जो डिजिट है वो अपन लिख लेंगे, दैट इज 0, दैट इज द कन्वर्जन। ओके, सो विल राइट डाउन द digit just before the decimal as our conversion part. Next we'll multiply 0.625 by 2, that will get 0.625, that will give you 1.25। ठीक है, तो अब डेसिमल से पहले 1 है तो उसको अपन 1 लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट विल मल्टीप्लाई ओनली फ्रैक्शन पार्ट, दैट इज 0.25 इंटू 2, दैट विल गिव यू 0.50। ठीक है, सो 0.50 में अगेन अपन क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी क्या लिख लेंगे, डेसिमल से पहले क्या है, 0। नेक्स्ट विल मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल गिव यू 1.0। तो डेसिमल के बाद 0 आ गया, अपन यहाँ पे अब रुक जाएंगे। जब भी डेसिमल का 0 आ जाएगा जस्ट बाद अपन स्टॉप कर लेंगे। उसके बाद अपना ये 1 लिख दिया कन्वर्जन। तो फाइनली कन्वर्जन इसमें फ्रैक्शन वाले पार्ट में टॉप टू बॉटम आना है, तो फाइनल कन्वर्जन क्या हो जाएगा, 0101। ठीक है, सो अपन का जो क्वेश्चन है उसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, उसका फाइनल आंसर होगा इंटीजर पार्ट का कन्वर्शन 100101, 100101, और डेसिमल पार्ट का कन्वर्जन क्या था, 0101, सो दैट इज 0101, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। ओके, so let us now look for the next conversion and that is others to decimal। now others number system to decimal number system अपन देखते हैं कि उसका conversion कैसे करते हैं। for this let us consider the example, for example 3564 in base 7 we need to convert this number into base 10। तो अपन क्या करेंगे, इस नंबर को कन्वर्ट करना है अगर बेस 10 में, तो जो नंबर है 3564, इसमें 3 से स्टार्ट करें 3 और इसमें 7 की पावर मल्टीप्लाई करनी है। कौन सी करनी है, यूनिट डिजिट में 7 की पावर 0 मल्टीप्लाई करना है, इसमें 7 की पावर 1, इसमें 7 की पावर 2 और इसमें 7 की पावर 3। ठीक है, सो अपन को सक्सेसिवली 7 की पावर मल्टीप्लाई करनी है इन डिजिट्स में। सो 3 इंटू 7 का क्यूब प्लस 5 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 7 टू दी पावर 1 एंड 4 इंटू 7 टू दी पावर 0। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, 3564 को अपन देख रहे हैं किसमें, बेस 7 से बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो अपन को क्या करना है, जो डिजिट्स हैं उनको 7 की सक्सेसिव पावर से मल्टीप्लाई करना है। यूनिट डिजिट को 7 की पावर 0 से, फिर 7 की पावर 1, फिर 7 की पावर 2, 7 की पावर 3 एंड सो ऑन, अगर डिजिट्स आगे हैं तो। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व कर लें, तो 3 इंटू 343 प्लस 5 इंटू 49 प्लस 42 प्लस 7 टू द पावर 0 इज 1, दैट मीन्स 4। So that will give you 3 into 343 will give you 1029। So 1029 plus 245 plus 46, इसको अगर अपन ऐड करें 1029 plus 245 plus 46 will give you 1320। So that will be our number in decimal number system। So our answer would be 1320। तो अपना आंसर जो होगा वो होगा 1320 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो अदर्स को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, अदर्स नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो अपन क्या करेंगे, जो अपना नंबर है उसकी यूनिट डिजिट से स्टार्ट करें या फिर लेफ्ट मोड से भी स्टार्ट करते हैं, तो 7 की जो हाईएस्ट पावर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3 सक्सेसिवली अपन बढ़ाते जाएंगे। तो अपन को यहाँ पे जैसे ये 4 डिजिट है, ये लेफ्ट मोस्ट में 4th डिजिट है, अगर लेफ्ट से देखें तो ये 4th डिजिट है, तो इसमें 7 की पावर 3, ये 3rd डिजिट है तो 7 की पावर 2, एक डिजिट प्लेस का एक नंबर कम पावर लगेगी। ठीक है, ये 2nd डिजिट है तो 7 की पावर 1, ये यूनिट डिजिट है तो 7 की पावर 0, ये अपन मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा दैट विल बी अवर कन्वर्जन इन बेस 10। ओके, सो लेट अस कंसिडर द नेक्स्ट एग्जांपल एंड अवर एग्जांपल इज अदर्स टू डेसिमल में एक एग्जांपल अपन और डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से कि नंबर है A2A इन बेस 11, वी नीड टू कन्वर्ट दिस टू बेस 10। अब ये बेस 11 है, ठीक है। अब बेस 11 में कौन कौन से डिजिट्स होते हैं, 0 से लेके 9 और 10 और 11। अब 10 को रिप्रेजेंट करेंगे A से और 11 को B से, ठीक है। तो ये बेस 11 में जो डिजिट्स यूज होते हैं वो ये हैं।
तो अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, a टू a और ये 11 है, तो इसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे a थर्ड प्लेस पे, लेफ्ट से थर्ड प्लेस पे, तो अपन 11 की 2 पावर मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इंटू 11 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 11 की पावर 1 प्लस a इंटू 11 की पावर 0. सो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121. सो 121 इंटू a इज 10 प्लस 2 इंटू 11 22 प्लस 11 पावर 0 1 and a is 10. So that will give you 1210 plus 32 and that is 1210 plus 32 will give you 1242. So that is the conversion in decimal system. So अपना आंसर क्या हो जाएगा 1242. ठीक है, तो ये बस अपन को मेथड पता होना चाहिए कि करना क्या है. जो अपना अदर्स है उसमें जो भी डिजिट है वो लेफ्ट से देखो किस पे, ये थर्ड नंबर है लेफ्ट से, ये वाली डिजिट थर्ड नंबर है, तो इसमें 11 की एक 3 से एक पावर कम, दैट मीन 11 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसमें ये सेकंड डिजिट है तो 11 की पावर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसमें फर्स्ट डिजिट है लेफ्ट से, तो पावर एक कम, 1 से एक पावर कम होती है, 11 पावर 0, तो वो मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, इन दिस वे विल ऐड दोज डिजिट्स एंड दैट विल बी आवर फाइनल डेसिमल कन्वर्जन फ्रॉम अदर्स. ओके, तो यहाँ पे अपन ने एग्जाम्पल देख लिया 11 बेस से 10 बेस का कन्वर्जन. ओके, सो लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम अदर्स टू डेसिमल. बट अब जो अपन क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें जो नंबर है उसमें डेसिमल पार्ट होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अपना नंबर है 0.112 और बेस है 5, इसको अपन को कन्वर्ट करना है डेसिमल में. ठीक है, अब अदर्स टू डेसिमल तो देख रहे हैं, लेकिन जो नंबर है बेस 5 में वो क्या है, डेसिमल पार्ट है, डेसिमल नंबर है. तो डेसिमल अदर्स बेस पे जब डेसिमल में कन्वर्ट होगा तो क्या करना है, तो इसमें करना कुछ नहीं है. जैसे 0.1125 है, ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, जो ये डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं, जस्ट डेसिमल के बाद कौन सा है 1, इसमें आपको 5 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, जो भी बेस है उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना है. और फिर जो नेक्स्ट डिजिट है 1, उसमें अगेन रेसिप्रोकल 5 का, लेकिन अब पावर 2 कर देना, पहले पावर 1 फिर पावर 2. फिर जो नेक्स्ट है अपना 2, उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 5 लेकिन पावर 3, तो यहाँ पे पावर इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है, ये बस अपन को ध्यान रखना है. अपोजिट है जो अपन ने पहले देखा था इसका कन्वर्जन अदर्स टू डेसिमल का, उसमें राइट से लेफ्ट तक पावर इंक्रीज होती थी, इसमें लेफ्ट से राइट इंक्रीज हो रही है पावर, लेकिन यहाँ पावर क्या है रेसिप्रोकल्स की. तो ये 1/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/25 और ये क्या हो जाएगा 2/125. तो ये जो कन्वर्जन है ये हो जाएगा डेसिमल में. ठीक है, सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट 0.256 in decimal number system. So that is the conversion of others number system to decimal number system. लेकिन others का वो केस जब वो नंबर डेसिमल पार्ट का होगा, जिसमें डेसिमल पार्ट होगा लेकिन बेस जो है वो डेसिमल से दूसरा होगा, तो उसके कैसे कन्वर्जन करते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल. ओके, सो लेट अस नाउ लुक एट द लास्ट केस एंड दैट इज अदर्स टू अदर. तो इस केस में एक्सक्लूडिंग डेसिमल नंबर सिस्टम अदर्स टू अदर्स कैसे कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल बाइनरी टू ऑक्टल करना है. ठीक है, तो बाइनरी अदर्स है, ऑक्टल अदर्स है अपार्ट फ्रॉम डेसिमल. ठीक है, तो इसका एग्जांपल समझते हैं. लेट्स से कि मुझे ऑक्टल है और या फिर ऑक्टल टू बाइनरी जाना है, या फिर मुझे बाइनरी से ऑक्टल जाना है. ठीक है, अदर्स टू अदर्स कन्वर्जन. ठीक है, तो अब इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, लेट्स से कि अगर अपन ये वाला केस देखें बाइनरी टू ऑक्टल, तो बाइनरी टू ऑक्टल में जैसे फॉर एग्जांपल मैं नंबर लेता हूं 11110. ठीक है, ये मेरा बाइनरी नंबर है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में. अब इसको मुझे ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो जो 8 है, 8 क्या होता है 2 का क्यूब होता है 8. ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अगर मेरे को इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो मैं इन डिजिट्स की पेयरिंग करूंगा, टेकिंग 3 डिजिट एट अ टाइम फ्रॉम द राइट साइड. ठीक है, राइट साइड से स्टार्ट करके 3 डिजिट का पेयर बना लेंगे अपन. तो 3 क्या है, ये जो पावर है 2 की. ठीक है, तो जो पावर होगी उतनी डिजिट्स लेके पेयरिंग कर देंगे. तो ये हो जाएगा अपना क्या 011. ठीक है, और एक हो जाएगा 111. ठीक है, और लास्ट क्या बचेगा 2 1 बचेंगे. तो 2 1 बचे, 3 डिजिट की पेयरिंग करनी थी तो अपन एक 0 एक्स्ट्रा लगा सकते हैं. लेफ्ट में कोई चेंज नहीं आएगा आंसर में. ठीक है,
तो अगर 2 बच रहे हैं, 3 की पेयरिंग करनी है तो आप 0 लगा दो इनिशियली, कुछ नहीं होगा उससे, कोई चेंज नहीं आएगा आंसर में। तो ये अपन ने क्या कर दिए, 3 डिजिट्स की पेयरिंग कर दी बाइनरी में। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद सीधे इसका क्या लिखना है आपको, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखना है। तो 110 का डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 6 और 111 का बेसिक डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 7 और 011 का जो डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 37 और सॉरी 011 का क्या होता है 3। तो अपना आंसर जो होगा वो होगा 376 इन बेस 8। ठीक है, तो दैट इज द कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल। तो करना क्या था, इसमें ये जो नंबर है इसमें क्या करना है अपन को, जो जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं वो 8 2 की पावर है, तो जो पावर है वो क्या है 3। तो अपन ने 3 की पेयरिंग करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड, किनकी, बाइनरी डिजिट्स की। तो 3 की पेयरिंग करने के बाद ये जो नंबर है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखा, इस पेयरिंग का डेसिमल इक्विवेलेंट, इस पेयरिंग का डेसिमल इक्विवेलेंट लिखा, एंड दैट इज द आंसर। ओके, so let us look at the one more example from others to other, and the number, let's say we need to convert the number system from binary to hexadecimal। ठीक है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करना है। एंड एग्जांपल अपन लेते हैं, लेट्स से बाइनरी का मैंने नंबर ले लिया 1 0 एंड 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 1 एंड 0, ये बाइनरी है, इसमें मुझे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। ठीक है, अब इसको मुझे अगर हेक्साडेसिमल में करना है तो 16 है, तो 16 क्या होता है 2 की पावर 4 होती है। तो अब अपन क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे 4 डिजिट एट अ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, राइट साइड से स्टार्टिंग करके राइट साइड से अपन 4 डिजिट का पेयरिंग करेंगे। तो ये अपन का क्या बनेगा 111 ठीक है, और एक क्या बनेगा 1011। ठीक है, तो ये अपन ने कर दी पेयरिंग 4 डिजिट्स की, जो पावर है उतनी पेयरिंग राइट साइड से स्टार्ट करके अपन ने इसकी पेयरिंग कर दी। अब इसका अपन क्या लिख देंगे, डेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो लेट्स से कि 111 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, जो अपन ने सीखा था रूल। ठीक है, इसको मुझे डेसिमल है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 2 की पावर मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर, तो 1 इंटू 2 का क्यूब प्लस 1 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 इंटू 2 की पावर 1 और 0 इंटू 2 की पावर 0, तो ये क्या बनेगा 8, ये क्या बनेगा 4, ये क्या बनेगा 2 और ये बनेगा 0। सो 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14। ठीक है, तो ये हो गया किसमें, बेस 10 में। तो इसका अपन डेसिमल इक्विवेलेंट लिख देंगे 14, और आप जब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालोगे यू विल गेट 11। ठीक है, सो दैट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट। अब अपन को क्या पता है कि अपन हेक्साडेसिमल में 11 को क्या लिखते हैं, हेक्साडेसिमल में अपन 11 को क्या लिखते हैं, 11 को अपन लिखते हैं क्या B, और 14 को क्या लिखते हैं, 14 को अपन लिखते हैं E। ठीक है, तो अपना फाइनल कन्वर्जन क्या हो जाएगा BE। सो दैट इज द फाइनल आंसर। तो ये जो नंबर है 1011 को पहले मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसका डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में 11 क्या होता है B और 14 क्या होता है E, तो फाइनल कन्वर्जन अपना क्या हो जाएगा BE इन हेक्साडेसिमल। ओके, सो लेट अस लुक एट द लास्ट क्वेश्चन from conversion, and that is from others to others, and let us now look the very unique conversion, that is from octal to hexadecimal। अब octal से hexadecimal conversion देखना है, so let us look at the example। Suppose there is the number 345 in octal, we need to convert this number to hexadecimal। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस ऑक्टल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। सो विल फर्स्ट कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, अब ऑक्टल टू बाइनरी करना है, तो 3 4 5, तो 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है क्या 011। ठीक है, 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 100। ठीक है, और 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 101। तो ये हो गया अपना क्या बाइनरी कन्वर्जन। 345 का अपन ने बाइनरी कन्वर्जन, तो अपन को पता है कि 5 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 4 को कैसे कन्वर्ट करते हैं, 3 को कैसे करते हैं। एग्जांपल देख लो, जैसे ये 5 है तो इसका मेरे को डेसिमल चाहिए, सो 2 2 ज़ा 4 रिमाइंडर 1, 2 1 ज़ा 2 रिमाइंडर 0, सो ये बन जाएगा 101। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, इस ऑक्टल की पहले बाइनरी लिख ली। अब बाइनरी से अपन कहाँ जाना है, हेक्साडेसिमल जाना है। तो ये क्या होता है 2 की पावर 4 16 होता है, तो 4 की पेयरिंग करेंगे फ्रॉम दी राइट साइड। ठीक है, फ्रॉम दी राइट साइड, तो 4 की पेयरिंग करेंगे तो क्या बनेगा
1010, ठीक है, और क्या बनेगा 0111, 0111, ठीक है, और एक बचेगा 0। तो ये अपनी 4 4 की पेयरिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो अपन 3 0 लगा सकते हैं। तो ये किस में हो गया, बाइनरी में 4 4 की पेयरिंग हो गई, ठीक है, जो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका अपन क्या लिखेंगे, अब इसका अपन लिखेंगे डेसिमल इक्विवेलेंट। इसका अपन डेसिमल इक्विवेलेंट लिख देंगे। तो 0101 का जो डेसिमल इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 5, 1110 का आएगा 14, ठीक है, और इसका क्या रहेगा 0, ठीक है। तो ये अपना क्या बना रहेगा 0 14 5। तो ये अपना क्या हो गया, डेसिमल इक्विवेलेंट हो गया। अब इसको अपन हेक्साडेसिमल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0 तो 0 ही रहता है हेक्साडेसिमल में। 14 क्या होता है, 14 होता है अपना E, ठीक है, और 5 एज इट इज। सो 0E5 विल बी अवर फाइनल कन्वर्जन इन हेक्साडेसिमल system. So 0E5 will be our final conversion in hexadecimal system. So that is the concept of others to others, and now it is octal to hexadecimal. तो octal 8 है और ये 16 है। अब 2 की पावर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, जो अपन ने डिस्कस किया था। तो अपन क्या करेंगे, पहले ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, बाइनरी की पेयरिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि हेक्साडेसिमल पे जाना है। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में फिर 4 4 की पेयरिंग होगी, ठीक है। अब पेयरिंग करने के बाद फिर क्या करेंगे, अपन उसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लेंगे, ठीक है, और डेसिमल इक्विवेलेंट लिखने के बाद फाइनल अपन क्या करेंगे, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो अवर आंसर विल बी ZOE5 will be our final hexadecimal conversion from octal to hexadecimal. Okay.